ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے کمشنر کراچی محمد اقبال میمن کی زیر صدارت ہونے والے جائزہ اجلاس کی۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں مخدوش عمارتوں کو مرحلہ وار خالی کروا کر منہدم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پہلے مرحلے میں انتہائی مخدوش عمارتیں گرائی جائیں گی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی مخدوش عمارتوں کو گرانے کا جامع منصوبہ بنائے گی۔ ڈپٹی کمشنر مخدوش عمارتوں کو منہدم کرنے کی کارروائیوں کی نگرانی کریں گے۔ کمشنر کراچی محمد اقبال میمن کی زیر صدارت جائزہ اجلاس میں فیصلہ کر لیا گیا۔ اجلاس میں مخدوش عمارتوں کو خالی کرانے کے اقدامات پر غور اور قانونی پہلوؤں کا جائزہ بھی لیا گیا۔ کمشنر کراچی کی ایس پی سی اے کو جلد از جلد کارروائی کے لیے ترجیحی اقدامات کرنے کی ہدایت۔ کمشنر کراچی کہتے ہیں کہ مخدوش عمارتوں کا سروے مکمل کر لیا گیا، جبکہ انتہائی مخدوش عمارتوں کو جلد از جلد منہدم کرنے کی ضرورت ہے۔ کراچی میں مخدوش عمارتوں کو مرحلہ وار خالی کروا کر منہدم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں انتہائی مخدوش عمارتیں گرائی جائیں گی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی مخدوش عمارتوں کو گرانے کا جامع منصوبہ بنائے گی۔ ڈپٹی کمشنرز مخدوش عمارتوں کو منہدم کرنے کی کارروائی کی نگرانی کریں گے۔ کمشنر کراچی محمد اقبال میمن کی زیر صدارت جائزہ اجلاس میں بڑا فیصلہ کر لیا گیا۔ اجلاس میں مخدوش عمارتوں کو خالی کرانے کے اقدامات پر غور اور قانونی پہلوؤں کا جائزہ بھی لیا گیا۔ کمشنر کراچی کے ایس بی سی اے کو جلد از جلد کارروائی کے لیے ترجیحی اقدامات کرنے کی ہدایت۔ کمشنر کراچی محمد اقبال میمن کہتے ہیں کہ مخدوش عمارتوں کا سروے مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ انتہائی مخدوش عمارتوں کو جلد از جلد منہدم کرنے کی ضرورت ہے۔ کراچی میں مخدوش عمارتوں کو مرحلہ وار خالی کروا کر منہدم کرنے کا بڑا فیصلہ کر لیا گیا۔ پہلے مرحلے میں انتہائی مخدوش عمارتیں گرائی جائیں گی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی مخدوش عمارتوں کو گرانے کا جامع منصوبہ بنائے گی۔ ڈپٹی کمشنرز مخدوش عمارتوں کو منہدم کرنے کی کارروائی کی نگرانی کریں گے۔ کمشنر کراچی محمد اقبال میمن کی زیر صدارت ہونے والے اہم اجلاس میں بڑا فیصلہ کر لیا گیا۔ اجلاس میں مخدوش عمارتوں کو خالی کرانے کے اقدامات پر غور اور قانونی پہلوؤں کا جائزہ بھی لیا گیا۔ کمشنر کراچی کی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو جلد از جلد کارروائی کے لیے ترجیحی اقدامات کرنے کی ہدایت۔ کمشنر کراچی محمد اقبال میمن کہتے ہیں کہ مخدوش عمارتوں کا سروے مکمل کر لیا گیا، جبکہ انتہائی مخدوش عمارتوں کو جلد از جلد منہدم کرنے کی ضرورت ہے۔ کمشنر کراچی کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں کراچی میں مخدوش عمارتوں کو خالی کروا کر منہدم کرنے کا بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جبکہ پہلے مرحلے میں انتہائی مخدوش عمارتیں گرائی جائیں گی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی مخدوش عمارتوں کو گرانے کا جامع منصوبہ بنائے گی۔ ڈپٹی کمشنر مخدوش عمارتوں کو منہدم کرنے کی کارروائیوں کی نگرانی کریں گے۔ اجلاس میں مخدوش عمارتوں کو خالی کرانے کے اقدامات پر غور اور قانونی پہلوؤں کا جائزہ بھی لیا گیا۔ کمشنر کراچی محمد اقبال میمن کی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو جلد از جلد کارروائی کے لیے ترجیحی اقدامات کرنے کی ہدایت۔ کمشنر کراچی محمد اقبال میمن کہتے ہیں کہ مخدوش عمارتوں کا سروے مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ انتہائی مخدوش عمارتوں کو جلد از جلد منہدم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی و ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور ٹریڈ اینڈ انڈسٹری ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے شرکت کی۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ کراچی کی بہتری اور کراچی کی ترقی کے لیے ٹریڈ اینڈ انڈسٹری ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ مل کر کام کرے۔ ٹریڈ اینڈ انڈسٹری ایسوسی ایشنز کی حدود میں ان کے تعاون سے فائر اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے۔ ٹریڈ اینڈ انڈسٹری ایسوسی ایشن کی حدود میں فائر اسٹیشن بننے سے رسپانس ٹائم انتہائی کم ہوگا اور 5 منٹ میں گاڑیاں جائے حادثہ پر پہنچ سکیں گی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور ٹریڈ اینڈ انڈسٹریز ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے شرکت کی۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کا اس موقع پر کہنا تھا کہ کراچی کی بہتری اور کراچی کی ترقی کے لیے ٹریڈ اینڈ انڈسٹریز ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ مل کر کام کرے۔ ٹریڈ اینڈ انڈسٹریز ایسوسی ایشنز کی حدود میں ان کے تعاون سے فائر اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے۔ ٹریڈ اینڈ انڈسٹریز ایسوسی ایشن کی حدود میں فائر اسٹیشن بننے سے رسپانس ٹائم انتہائی کم ہوگا اور 5 منٹ میں گاڑیاں جائے حادثہ پر پہنچ سکیں گی۔
ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی آئی جے سندھ غلام نبی میمن سے ملاقات ہوئی، جبکہ اس ملاقات میں شہر کراچی میں تمام امدادی نمبروں کو ایک کرنے پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ ایمبولینس سروس 1122 پولیس کی مدد کے لیے 15 فائر بریگیڈ کی مدد کے لیے 139916 کو یکجا کیا جائے گا۔ شہریوں کو مدد کے لیے صرف 1122 پر کال کرنا ہوگی۔ 1122 کو شہری آسانی کے ساتھ یاد رکھ سکیں گے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب سے آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی ملاقات۔ کراچی میں تمام امدادی نمبروں کو ایک کرنے پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ ایمبولینس سروس 1122 پولیس کی مدد کے لیے 15 کو یکجا کیا جائے گا۔ شہریوں کو مدد کے لیے صرف 1122 پر کال کرنا ہوگی۔ 1122 کو شہری آسانی کے ساتھ یاد رکھ سکیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب شہر کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے متحرک ہو گئے۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کی آئی چندری گر روڈ آمد، سٹی اسٹیشن فلائی اوور کے تزئین و آرائش اور مرمتی کام کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر مرتضی وہاب نے کہا کہ فلائی اوور سے گزرنے والی تمام تاروں کو انڈر گراؤنڈ کیا گیا ہے۔ مرتضی وہاب نے بھی کہا کہ سٹی اسٹیشن فلائی اوور کی مکمل تزئین و آرائش کی گئی ہے، برج کی سڑک کی کارپیٹنگ کی جا رہی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کی آئی چندری گر روڈ آمد، سٹی اسٹیشن فلائی اوور کے تزئین و آرائش اور مرمتی کاموں کا جائزہ۔ اس موقع پر بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ فلائی اوور سے گزرنے والی تمام تاروں کو انڈر گراؤنڈ کیا گیا ہے، سٹی اسٹیشن فلائی اوور کی مکمل تزئین و آرائش کی گئی ہے، برج کی سڑک کی کارپیٹنگ کی جا رہی ہے۔ برج کہتے ہیں وہاں پر موجود ہوں۔ وہاں پر میرے ساتھ KDA کے ڈائریکٹر جنرل، ڈپٹی کمشنر ساؤتھ، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان، لیڈران، شکیل چودھری صاحب موجود ہیں۔ اور اب سے کچھ ماہ پہلے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ چندری گڑھ روڈ کے تمام جو وائرز ہیں ان کو انڈر گراؤنڈ کیا جائے گا، اس کو ریڈو کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک برج کی تزئین و آرائش کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اور آج مجھے خوشی ہوتی ہے، میں یہاں پر خود آیا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے کارپیٹنگ کا کام یہاں پر ہو رہا ہے۔ برج کی کمپلیٹلی مرمت کر دی گئی ہے اور بڑی خوبصورت جو کلونیل سٹائل کی لائٹیں ہوتی ہیں ان کو یہاں پر نصب کیا گیا اور بڑا خوبصورت لک اس علاقے میں آ رہا ہے۔ تو ایک اور وعدہ جو کراچی کی انتظامیہ نے کراچی کی عوام سے کیا تھا اس کو پورا کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے ترقی کا سفر، بہتری کا سفر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں کراچی شہر میں جاری و ساری رہے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی زیر صدارت ایمبولینس سروس سے متعلق اجلاس ہوا۔ اجلاس میں مرتضی وہاب نے کہا کہ ایمبولینس سروس سے شہریوں کو مفت سہولت ملی ہے۔ ایمبولینس سروس 1122 سندھ کے تمام شہروں میں شروع کی جا رہی ہے۔ کہا کہ جلد ہی فائر بریگیڈ ریسکیو ڈپارٹمنٹ کو 1122 سے منسلک کر دیا جائے گا۔ فائر بریگیڈ کو اپ گریڈ کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں جدید آلات بھی فراہم کیے جائیں گے۔ مرتضی وہاب کی زیر صدارت ایمبولینس سروس سے متعلق اجلاس ہوا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ایمبولینس سروس سے شہریوں کو مفت سہولت ملی ہے۔ ایمبولینس سروس 1122 صوبہ سندھ کے تمام شہروں میں شروع کی جا رہی ہے۔ فائر بریگیڈ کو اپ گریڈ کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں جدید آلات بھی فراہم کیے جائیں گے۔ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر KMC اینٹی انکروچمنٹ کی ٹیموں کی کراچی کے ضلع کورنگی اور شرکی میں کارروائیاں۔ کورنگی اللہ والا ٹاؤن محمود آباد ایڈمن سوسائٹی میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا۔ دکانوں کے سامنے بنائے گئے چبوترے اور دیگر تجاوزات کو مسمار کر دیا گیا، جبکہ سڑکوں اور فٹ پاتھ پر رکھا گیا سامان بھی ضبط کر لیا گیا۔ بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کی ٹیموں نے سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کی ہدایت پر ضلع شرکی اور کورنگی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں جمشید ڈویژن ایڈمن سوسائٹی محمود آباد میں شاہراہوں پر قائم تجاوزات مسمار کر کے سڑکوں پر رکھے گئے ٹھیلے پتھارے اور اسٹالز قبضے میں لے لیے گئے۔ آپریشن کی نگرانی ڈپٹی ڈائریکٹر امین لاکھانی نے کی۔ ڈسٹرکٹ کورنگی اللہ والا ٹاؤن کے اطراف تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران سڑکوں اور فٹ پاتھ پر قائم تجاوزات مسمار کر دی گئیں۔ کارروائی
कार्रवाई के दौरान होटल्स का सामान, कुर्सियां, मेजें, तख्त और स्टॉल्स भी जब्त कर लिए गए। कार्रवाई डायरेक्टर कौरंगी मुसर्रत अली खान, डिप्टी डायरेक्टर खुर्रम अंसारी की निगरानी में की गई। सीनियर डायरेक्टर केएमसी बशीर सिद्दीकी का कहना था कि केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट का अमला शहर भर को तजावुजात से पाक करने के मिशन पर गामजन है और रोजाना की बुनियाद पर शहर भर के तमाम अजला में बिला तफरीक कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। दुकानों के सामने बनाए गए चबूतरे और जितने भी गैलरियाँ थी, सनशेड थे, उनको मसमार किया जा रहा है और मुख्तलिफ किस्म का सामान जो रोड और फुटपाथ पर रखा गया था उनको जब्त किया जा रहा है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से दूसरी हमारी कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में अल्लाह वाला टाउन के अतराफ में रोड और फुटपाथ पर रखी हुई तजाज़वात है, उनको ख़त्म किया जा रहा है। मुख्तलिफ किस्म का सामान जो है वो जब्त किया जा रहा है। इन तमाम कार्रवाई में हमारे साथ इलाके के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, इलाका पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस, रेंजर, सिटी वार्डन ऑफिसर व स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट भी मौके पर मौजूद है। लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन रोजाना की बुनियाद पर कराची के 7 अजला पे दोनों अजला में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट के अमले के साथ जिला इंतजामिया, इलाका पुलिस और सिटी वार्डन भी मुआवनत के लिए मौजूद थे। और अब कुछ बात करेंगे एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस के हवाले से। आपको बताएं कि एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस को मजदूरों को उठाना भारी पड़ गया। एंटी करप्शन के एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस जोन 1 में कार्रवाई। एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस हेड कांस्टेबल शाहरुख गिरफ्तार कर लिया गया। जराये के मुताबिक एंटी इंक्रोचमेंट का अमला दस्तगीर से मकान की तामीर के दौरान मजदूरों को लेकर आया था। हेड कांस्टेबल शाहरुख मकामी बिल्डर के मजदूरों से रिहाई के एवज रिश्वत वसूल कर रहा था। एंटी करप्शन टीम ने हेड कांस्टेबल शाहरुख से 30,000 रुपए रिश्वत भी बरामद कर ली। 6 बेगुना मजदूर भी बाजियाब हुए जिनको रिश्वत के एवज हब्से बेजा में बिठाया हुआ था। छापे के बाद एंटी करप्शन और एंटी इंक्रोचमेंट में ठन गई। मुद्दई के मुकर जाने पर गिरफ्तार अफराद को छोड़ने की इत्तलात मिली है। एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस को मजदूरों को उठाना भारी पड़ गया। एंटी करप्शन की एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस जोन 1 में कार्रवाई। एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस का हेड कांस्टेबल शाहरुख गिरफ्तार कर लिया गया। जराये के मुताबिक एंटी इंक्रोचमेंट का अमला दस्तगीर से मकान की तामीर के दौरान मजदूरों को लेकर आया था। हेड कांस्टेबल शाहरुख मकामी बिल्डर के मजदूरों से रिहाई के एवज रिश्वत वसूल कर रहा था। एंटी करप्शन टीम ने हेड कांस्टेबल शाहरुख से 30,000 रुपए रिश्वत भी बरामद कर ली। 6 बेगुना मजदूर भी बाजियाब हुए जिनको रिश्वत के लिए हब्से बेजा में बिठाया हुआ था। जबकि छापे के बाद एंटी करप्शन और एंटी इंक्रोचमेंट में ठन गई। मुद्दई के मुकर जाने पर गिरफ्तार अफराद को छोड़ने की भी इत्तलात है। आपको बताएं कि एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस को मजदूरों को उठाना भारी पड़ गया। एंटी करप्शन के एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस जोन 1 में कार्रवाई। एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस का हेड कांस्टेबल शाहरुख गिरफ्तार कर लिया गया। जराये के मुताबिक एंटी इंक्रोचमेंट का अमला दस्तगीर से मकान की तामीर के दौरान मजदूरों को लेकर आया था। हेड कांस्टेबल शाहरुख मकामी बिल्डर के मजदूरों से रिहाई के एवज रिश्वत वसूल कर रहा था। एंटी करप्शन टीम ने हेड कांस्टेबल शाहरुख से 30,000 रुपए रिश्वत भी बरामद कर ली। और अब रुक करेंगे शहर कराची के इलाके सोराग बोर्ड का। आपको बताएं कि सोराग बोर्ड में पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है, जबकि कार्रवाई के दौरान एक लैंड ग्रैपर गिरफ्तार कर लिया जबकि 2 लैंड ग्रैपर्स फरार हो गए। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त शेर खान के नाम से हुई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे कामरान जलील से। कामरान जलील, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, ये सोराग बोर्ड पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है जिसके नतीजे में एक मुलजिम है जो लैंड ग्रैपर है, इसे गिरफ्तार किया गया है जबकि इसके 2 साथी हैं वो फरार होने में कामयाब हुए हैं। गिरफ्तार होने वाले में शेर खान नामी लैंड ग्रैपर है जो गिरफ्तार हुआ है, जबकि फरार होने वालों में महमूद, मसूद और असलम नामी जो फरार मुलजिम है जो इस वाक़े से फरार हुए हैं। पुलिस का कहना यह है कि ये लैंड ग्रैपर सरकारी जमीन पर कब्जा करके गैर कानूनी तामीरात कर रहे थे, जिस पर अदालती हुक्म पर जो सरकारी मुलाजिम थे वो वहाँ
نوٹس دینے گئے تھے کہ یہ سرکاری زمین ہے, یہاں پر غیر قانونی تعمیرات نہیں کی جا سکتی. اسی دوران شیر خان اپنے دیگر ساتھی کے ساتھ وہاں پہنچا ہے اور پہنچنے کے بعد سرکاری عملے کو زبردست کیا ہے اور انہیں ان پر فائرنگ بھی کی ہے, جس کے بعد یہ اطلاع پولیس کو پہنچی ہے. پولیس نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے ایک ملزم شیر خان کو گرفتار کیا ہے, جبکہ محمود مسعود اور اسلم دونوں موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں, جن کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار کارروائیاں کی جا رہی ہیں. کامران جلیل, بہت شکریہ. خبروں کا سلسلہ جاری ہے, حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم ہے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی کے ضلع وسطی میں بلدیاتی الیکشن کی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ضلع وسطی طہا سلیم کی زیر صدارت بلدیاتی انتخابات سے متعلق اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں بلدیاتی الیکشن کے پرامن انعقاد سے متعلق اقدامات پر مشاورت کی گئی. طہا سلیم کہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کو پرامن بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے, جبکہ پولنگ اسٹیشن کے اطراف امن و امان کی صورتحال کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی اور دیگر شہری سہولیات کو بھی ممکن بنایا جائے. ڈپٹی کمشنر و ریٹرننگ آفیسر ضلع وسطی طہا سلیم نے بلدیاتی الیکشن کو پرامن طریقے سے مکمل کرنے کے لیے افسران سے لائے عمل طلب کر لیا. طہا سلیم کہتے ہیں کہ ضلع وسطی کراچی میں بلدیاتی انتخابات کو پرامن بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے. بلدیاتی انتخابات کے انتظامات کے حوالے سے منعقدہ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر سینٹرل نے ضلع انتظامیہ اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران سے بلدیاتی الیکشن کے پرامن انعقاد کے انتظامات کے حوالے سے تجاویز طلب کی, جبکہ ممکنہ پولنگ اسٹیشن بننے والے اسکولوں اور دیگر عمارتوں کا دورہ کرنے اور علاقائی صورتحال کا جائزہ لینے کی بھی ہدایت کی. اس موقع پر ریٹرننگ اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر نے اپنے سب ڈویژن کی علاقائی صورتحال کے بارے میں تفصیلات فراہم کی, جبکہ اجلاس میں اس بات پر خصوصی زور دیا گیا کہ ضلع وسطی میں قائم ہونے والے پولنگ اسٹیشن کے اطراف امن و امان کی صورتحال کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی اور دیگر شہری سہولیات کو بھی ممکن بنایا جائے, جبکہ شہریوں کے درمیان سیاسی اختلافات کو کم کرنے کے لیے خصوصی طور پر اقدامات کیے جائیں تاکہ عوام خوشگوار ماحول میں معاشرتی ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ بلدیاتی انتخابات میں اپنی مرضی کے امیدواروں کو چن سکیں. جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ ضلع وسطی میں ایسی سرگرمیوں کو پنپنے کا موقع نہ دے جو عوام کے درمیان اختلافات اور تشدد کا باعث بنے. اور آگے بڑھیں. ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر ضلع جنوبی کیپٹن ریٹائرڈ عبدالستار عیسانی کا ضلع بھر کے برساتی نالوں کا ہنگامی دورہ. مونسون بارشوں سے قبل برساتی نالوں کی صفائی مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے. کہتے ہیں کہ ساحلی پٹی اور نشیبی علاقوں میں ایمرجنسی کی صورتحال میں شہریوں کو زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے الیکشن پلان تیار ہے. بارشوں سے ہونے والے ممکنہ نقصانات سے بچاؤ اور برساتی پانی کی نکاسی کے لیے تمام متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کا آپس میں باہمی رابطہ انتہائی ضروری ہے. ڈپٹی کمشنر ضلع جنوبی کیپٹن ریٹائرڈ عبدالستار عیسانی کا ضلع بھر کے برساتی نالوں کا ہنگامی دورہ. مونسون بارشوں سے قبل برساتی نالوں کی صفائی مکمل کرنے کی ہدایت. کہتے ہیں کہ ساحلی پٹی اور نشیبی علاقوں میں ایمرجنسی کی صورتحال میں شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے ایکشن پلان تیار ہے. بارشوں سے ہونے والے ممکنہ نقصانات سے بچاؤ اور برساتی پانی کی نکاسی کے لیے تمام متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کا آپس میں باہمی رابطہ بھی انتہائی ضروری ہے. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرک رحمت اللہ شیخ نے کہا ہے کہ مونسون سیزن سے قبل برسات سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. BNR کے افسران ضلع شرکی میں موجود نالوں کے سروے کر کے فوری رپورٹ پیش کریں تاکہ باہمی اشتراک سے نالوں کی صفائی کے کام مکمل کر لیے جائیں. سپرنٹینڈنگ انجینئر مبین شیخ، ایگزیکٹو انجینئر BNR اقبال احمد ملا اور اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر راشد فیاض کے ہمراہ یونیورسٹی روڈ اور گلشن اقبال میں نالوں کی صورتحال کا معائنہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرک رحمت اللہ شیخ نے وہاں موجود افسران سے نالوں کی صفائی اور صورتحال کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ افسران فوری طور پر
नालों का मुकम्मल सर्वे करके रिपोर्ट पेश करें ताकि इसको सामने रखते हुए मॉनसून सीजन से कबल नालों की सफाई के काम बाहमी इश्तराक से मुकम्मल किए जा सके। उनका कहना था कि जिला शर्की में मौजूद क्रोंग पॉइंट्स जहां माजी में पानी जमा होने की शिकायत मौसूल हुई है वहां खुसूसी तौर पर सफाई के इंतजाम किए जाएं। महकमा एमडी को हिदायत जारी करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कहा कि कबल इस वक्त डी वाटरिंग पंप्स की सूरत हाल का जायजा लिया जाए ताकि बरसात में नकासी आब के उमूर मुतासिर न हों। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी शबीउल हसन सिद्दीकी ने कहा है कि बल्दिया गरबी की तामीर और तरक्की में तमाम रिहाइश पजीर अफराद और स्टेक होल्डर से मुशावरत का आगाज किया जा रहा है। अवामी मसाइल का हल अवाम से बाहमी मुशावरत से निकाला जाएगा। बल्दिया गरबी के दफ्तर में आने वाले वफूद से बातचीत करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी शबीउल हसन सिद्दीकी ने कहा कि हमारे पास वसाइल कम जबकि मसाइल ज्यादा हैं, मगर इस वक्त भरपूर तवज्जो मॉनसून के हवाले से पैदा होने वाले हालात को कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, जिनमें आपसे भरपूर ताउन की दरख्वास्त है। जो आबादियां नदी नालों के अतराफ आबाद हैं उन पर तरजीही बुनियादों पर इकदाम जारी हैं। बल्दिया गरबी दीगर यूटिलिटी सर्विसेज की फराहमी में मसरूफ इदारों की मदद से मसरूफ अमल है। इस मौके पर बल्दिया गरबी से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी और समाजी तंजीमों के वफूद के नुमाइंदगान ने बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी में तैनाती को सराहा और अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई और मसाइल से आगाह किया। मुलाकात के दौरान सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर और बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। शहर कराची में कौमी असम्बली का हल्का यानी 240 में इंतखाबी मार्का, सियासी गहमा गहमी बढ़ गई। सियासी पार्टियां वही जबकि नारे भी वही और हल्के के मसाइल भी अब तक वही हैं। हल्के में कोई गली, पार्क और ग्राउंड और सड़क ऐसी नहीं है कि जिससे मॉडल कहा जा सके। हल्का यानी 240 की आवाम आज भी पानी, सीवरेज, सड़कें और पार्क जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। कराची के हल्का एन 240 में इंतखाबी मार्का सज गया। सियासी पार्टियां वही, नारे भी वही और हल्के के मसाइल भी वही। कई दिहाइयों से वोट देने वाले हल्का एन 240 के आवाम आज भी पानी, सीवरेज, सड़कें, पार्क जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। हल्का एन 240 में कोई गली, कोई पार्क, ग्राउंड और सड़क ऐसी नहीं जिसे मॉडल के तौर पर देखा जा सके। बुनियादी मसाइल हल करवाने के लिए वोटर्स अपने मुंतखब नुमाइंदों को ढूंढने में ही नए इलेक्शन तक पहुंच जाते हैं। हम ये कहना चाहेंगे भाई पानी की यहाँ बहुत सख्त प्रॉब्लम है, पानी आता ही नहीं है। वो पानी जब आता है जब लाइट चले जाती है। अब हर घर में तो जनरेटर है नहीं ना, कहाँ से लोग भरेंगे पानी, और आता भी है तो गंदा पानी आता है, बदबूदार। वो पानी पीने के काबिल है क्या? आप खुद बताएं, या तो खुद पी के दिखाएं हमारे को ताकि हम भी पी लें। भाई यही मसाइल है, पानी, बिजली, गैस का मसला है। लाइट जो है वो बगैर किसी उसके चला के जो बंद कर देना रात को 2:30 बजे 2 बजे, कोई टाइम ही नहीं है। बंदे को पता हो कि इस टाइम जाएगी तो इंतज़ाम करे। और वो लोगों का हर किसी के पास तो जैसा इन्होंने बोला कि वो जनरेटर हर किसी के घर में तो जनरेटर है नहीं। सूद एक बॉक्स रख के जा रहे हैं कुरंगी के अंदर, देखे मैंने उधर बेहतरीन सफाइयाँ चल रही हैं। इधर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इधर कोई देखभाल नहीं हो रही है। इधर हमारे लांडी के अंदर ना कोई सफाई सुथराई नहीं है, कुछ भी नहीं है इधर पे। कोई भी आ जाए, काम किसी ने करना, सबने अपनी जेबें भरनी है। पब्लिक के लिए वही जलीलो ख्वारी रहना है। पब्लिक के ना पानी के मसले हल होने, ना सीवरेज के मसले हल होने, ना जाप के मसले हल होने हैं। गंदगी के आप देखें ढेर लगे हुए। इसी के जगह अगर आप शराफी गोट का जाके मुआयना कर लें तो वहाँ पर आपको एक एक गली में रोड नजर आएगा। पानी का वहाँ मसला नहीं, सीवरेज का वहाँ कोई मसला नहीं, लाइट का वहाँ मसला नहीं। यहाँ पे 12 से 14 घंटे की लाइट जाती है। इस इलाके के लोग परेशान बहुत हैं। पहला मसला इनका पानी का है, जो कि पानी आज तक नहीं आ रहा है। मुझे कोई मूवमेंट नहीं आ रही है इस इलाके के अंदर तकरीबन 30 साल हुकूमत में, मगर पानी का मसला हल नहीं कर सकी वो। अब लोग मतलब उस पर एतमाद करते ही नहीं है। अब इस वक्त सोच रहे हैं लोग PSP को डालने के लिए कि मुस्तफा कमाल भाई पहले भी कराची में काम करते रहे और इंशाअल्लाह अभी अगर अल्लाह ताला इनको इज्जत देगा, शबीर भाई को तो कामयाब हुए तो इंशाअल्लाह इलाके में काम होगा। ये हमारी उम्मीद, हम लोग उम्मीद पर इनको चाहते हैं आजमाना यहाँ पर। और इंशाअल्लाह गटर का निज़ाम जो भी है, मतलब कहने का ये वसीम साहब रहे थे 4 साल रोते रहे। इख्तियारात का रोना लगा रखा था उन्होंने कि मतलब कहने का यार इख्तियारात नहीं है। वो 4 साल हुकूमत पूरी करते गए हुए यहाँ से, जाके लोग परेशान यार रहे इलाके में। यहाँ कोई आया नहीं हमारे पास, हमारे को पैसा लांडी का रहा नहीं।
एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन तक बुनियादी मसाइल हल हों या न हों, ताहम सियासी जमातों के अवामी नुमाइंदे चंद गलियों की सरकारी, चंद पानी और सीवरेज लाइन की तनसीब पर ही इक्तिफा करके वोट मांगने के लिए फखरिया अंदाज में हल्के में अवामी राब्ता मुहिम चलाने में मगन हो जाते हैं। अवामी नुमाइंदे तकारीन में फंड्स की किल्लत, हुकूमती जमातों की अदम दिलचस्पी का जवाब पेश करके अपनी नाकिस कारकर्दगी पर पर्दा डाल देते हैं और अपनी शोला बयानी से खुद को हल्के की अबतर सूरत हाल से बरुज़्ज़मा करार देकर आइंदा 5 सालों के लिए रुकने असेंबली की मरात लेने का सबसे ज्यादा हकदार खुद को गर्दानते हैं। सादालू अवाम फिर सियासी दाव पेच के सामने सर तस्लीम खम करके अपने वोट से नवाजने का वादा कर लेती है। फिर चंद सालों बाद तारीख फिर दोहराई जाती है। सियासी पार्टियां भी वही, नारे भी वही और हल्के के मसाइल भी वही के वही। यही सियासी जमातों की जानिब से अवाम के लिए बनाई गई तरतीब है और यही अवाम के लिए सियासी जमातों की जानिब से लिखा गया मुकद्दर है। और अब रुख करेंगे जिला वस्ती के इलाके दस्तगीर का। आपको बताएं कि दस्तगीर में वाक़े अलहमरा पार्क में तफरीही सहूलियात का फुक़दान, घास की जगह कचरे के अंबार लगने से पार्क खंडरात का मंजर पेश करने लगा। पार्क में झूले और ग्रिल भी मंजर आम से गायब है। वीरान पार्क को मनशियात पीने वालों ने अपनी आमाजगाह बना लिया, जबकि दस्तगीर के वासियों का एडमिनिस्ट्रेटर कराची से अलहमरा पार्क की असर नौ तज़ीन व आराइश का मुतालबा है। शहर कायद के तबाहाल पार्क एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की तवज्जो के मुंतजिर। कराची के इलाके दस्तगीर ब्लॉक 9 में वाक़े अलहमरा पार्क भी इंतजामिया की नाअहली की नजर हो गया। पार्क में जगह जगह कचरे के अंबार लगे हैं, जबकि झूले और ग्रिल्स भी गायब हो चुकी हैं। खस्ता हाल पार्क पर इलाका मकीनों का कहना था कि इस पार्क की खस्ता हाली कोई सुनने को तैयार नहीं। हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ सफाई करवाते हैं। भाई ये पार्क के अंदर कचरा हो रहा है इतना, यहाँ पर चोट लगे आके बैठते हैं। औरतें पहले वॉक करती थी इस पार्क के अंदर, रौनक थी, लेकिन जब से ये कचरा वचरा हुआ है सब टूट गया पार्क। ना कोई औरत आ रही है ना कोई बच्चा आ रहा है, पार्क सिर्फ खाली पड़ा हुआ। यहाँ पे नशा बैठ के कर रहे हैं लोग। यहाँ पे ये पहले बना था फिर उजड़ गया, अब तो उजड़ा ही उजड़ा है ये। अब ये कैसे बनेगा ये समझ में नहीं आता कि कैसे बनेगा। ये तो तकरीबन हम 8 साल से ले रहे हैं। 8 साल से थोड़ा बहुत एक मरतबा बना था, उसके बाद कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पे पूछने का। वो गेट भी वहाँ से निकाल के लेकर के और सारा चढ़ाई कुंडी बना हुआ है। और हमने उससे पूछा तो बोला 3 करोड़ का खर्चा है, 4 करोड़ का खर्चा है, आते और चले जाते हैं। हर जगह कचरा फैला हुआ, हर जगह इंतजामिया कोई वही नहीं देखती। ये तो हुकूमत को भी चाहिए जरा ख्याल रखे, ना बच्चे खेल सकते ना कुछ कर सकते, क्या करे। अब ये कौन सही करवाएगा, कैसे होगा ये सही। वहाँ से आके मुझे 4 साल हो गए, मैं जब से ऐसे ही देख रही हूँ, अभी तक इसको कुछ भी नहीं हुआ, ऐसी गंदगी ऐसी ही है। इस मौके पर बच्चे भी एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब से पार्क की तज़ीन व आराइश का मुतालबा करते दिखाई दिए। मजबूरी में खेल लेते हैं, यहाँ पे कचरा इतना सारा है, बस हम तल्ले के खेल लेते हैं। यहाँ पे कोई आते हैं, ट्रक आते हैं, उठाते हैं कचरा, लेकिन ये लोग फिर से फेंक देते हैं कचरा। तो ये ग्रिलें भी निकाल दी, पार्क की हालत वो तोड़ दी है, बहुत सारी चीज़ें पार्क की। मैं तो ये कहूँगा कि पार्क बनवाया जाए, झूले वूले लगाए जाए, बच्चे भी खेल लेंगे। ताकि हम लोग यहाँ पे खेलना है, ये देखें कितनी गंदगी है। यहाँ पे डॉगी होते हैं, रात में हम खेल भी नहीं सकते हैं। यहाँ झूले लगे हैं, पहले यहाँ पे झूले लगे हुए थे मगर वो निकाल लिए हीरोइनची ने। तो वहाब अंकल आपने जैसे सारे ग्राउंड बनवा रहे हैं ना, ऐसा ये वाला भी ग्राउंड बनवाए हमारा, जहाँ हम खेल सकें। पार्क में रोशनी का भी इंतजाम मौजूद नहीं, जो रात होते ही हैरान कुन तौर पर मंशियात फरोशों की आमाजगाह बन जाता है, जिसकी वजह से शहरी काफी परेशान हैं। अवाम का मजीद कहना था कि जल्द इस पार्क की सफाई करवा कर इसे बच्चों के लिए खोला जाए। कैमरामैन इमरान यामीन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज कराची। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के इंतजामी गफलत से बफर जोन KBR सोसाइटी में बल्दियाती मसाइल के अंबार लग गए। सीवरेज के नाकारा निज़ाम ने KBR सोसाइटी का नक्शा बिगाड़ दिया, जबकि KBR की गलियों में सीवरेज का पानी जमा होने से गंदगी और गलाजत के ढेर लगे हुए हैं। गंदगी के बायस मच्छरों की अफजाइश में भी इजाफा हो गया है। बोसीदा सीवरेज निजाम और गंदे पानी से भरी गलियां, कराची की KBR सोसाइटी भी बल्दियाती नुमाइंदों की नाअहली की भेंट चढ़ गई। इलाके में गंदा पानी पिछले कई माह से तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जहां नक्कासी आब का भी कोई निजाम मौजूद नहीं, जिसकी वजह से शहरी रोज मुश्किलात से होकर गुजरते हैं। गलियों में बदबूदार पानी से परेशान अहले इलाका ने बताया कि हमारे बच्चे इसकी वजह से बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। यहाँ कोई बल्दियाती नुमाइंदा विजिट करने भी नहीं आता। ये KBR कहने को बफर जोन है, कहने को बफर जोन है, लेकिन इस इलाके को देखें, ये बफर जोन नहीं, ये
गटर टोन है, इसका हर गली का हर जगह का यही इलाज है। ना यहाँ पे पीने का पानी है, ना यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम है। साल में 2 या 3 मरतबा जमादार आते हैं कचरा उठाने के लिए और झाड़ू देने के लिए। यहाँ पे जो भी मामलात होते हैं आवाम अपने बलबूते पे काम करवाती है। मतलब कोई नुमाइंदा यहाँ गटर भी खुलवाना हो अपने बलबूते पे। आज से 2 साल पहले हम लोगों ने ये गटर बनवाए थे 15-20 हज़ार रुपये खर्चा करवा के, लेकिन ये भी काम शुरू हो रहा है। ये पीछे गुजर नाले पे टैंकर आके कोई उनका तरीका नहीं, तार तोड़ के जा रहे हैं, परेशान कर दिए हैं, ठीक है ना। और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही है, हैवी ट्रैफिक आ रही है, गटर तोड़ दिए सारे, कोई पुरसान हल नहीं है। अभी 2 दिन पहले 5 दिन पहले ही 4,000 रुपये खर्चा करे गटर खुलवाया था, फिर दोबारा आपके सामने ये हालत है। भाई एक तकरीबन हम तो अपने बचपन से ही देख रहे हैं और हमारे को यहाँ पे तकरीबन 40-45 साल हो गए और ये ऐसा ही रहता है। और यहाँ पे समझो अभी बल्दियाती इलेक्शन शुरू हो जाएंगे ना, ये सफाई हो जाएगी, कांच हो जाएगा सब। कोई पीपल्स पार्टी के झंडे लेके आया हुआ है, कोई MQM के लिए आया हुआ है, कोई PTI के लिए आया हुआ है। ये सारे झंडे मिक्स होकर जगह को साफ कर देंगे, इलेक्शन खत्म, यहाँ पे फिर कुत्ते बिल्लियाँ लौट रहे होंगे। भाई यही सीन चलता रहता है भाई, कोई किसी का नहीं है। पानी की सूरत बेसिकली शुरू से तो नहीं थी, बट ये अभी जब से गुज्जर नाले का प्रोजेक्ट वगैरह शुरू हुआ है, जब से ये प्रोजेक्ट वगैरह, तो यहाँ से जो है ना बहुत बड़े बड़े डंपर आते जाते हैं। उसकी वजह से ढक्कन वगैरह जो है ना वो टूटने वगैरह का उनका असर जो है ना बढ़ चुका है। तो वो ढक्कन टूटते हैं, जाहिर सी बात है अंदर जाएंगे, बाहर तो आएंगे नहीं। जब अंदर जा रहे हैं उस वजह से पानी की ब्लॉकेज हो रही है, जिसकी वजह से जो है ना पानी रोडों पे आ रहा है। अच्छा, रोडों पे आने के बाद मसला क्या हो रहा है? मसला ये हो रहा है कि आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है, मेहमान यहाँ पे आ रहे जा रहे हैं तो उनको मसले मसाइल हैं। सही है, बच्चे वगैरह, कल जो है बकायदा क्या नाम है, बच्चा बाइक लेके गिर गया था, उसका सर्वर जो है ना फट गया। तो मतलब देखने वाला कोई नहीं, पुरसाने वाला कोई नहीं है क्या? बिल्कुल गटर खुले हैं और ये गटर इतने हैं कि आप और मैं भी इसमें चले जाएंगे ना तो इसमें हम लोग देखेंगे नहीं, उसके ऊपर भी स्पेस रहेगा कि उसके ऊपर भी कोई गिर जाए तो वो भी आ जाएगा। तकरीबन 7-7 फुट के गटर हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसके अंदर जाने के बाद निकलने के चांसेस हैं किसी के। कराची के अक्सर इलाकों की गलियां बल्दियाती नुमाइंदों की अदम मौजूदगी के बाइस सीवरेज के पानी का तालाब बनी हुई हैं। कई इलाकों में इस गंदे पानी की वजह से मच्छरों की अफजाइश में भी इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से मकीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं। कैमरामैन इमरान यामीन के साथ सैयद नुमान गुल, Metro 1 न्यूज, कराची। शहर कराची के अक्सर इलाकों में तरक्याती कामों के नाम पर खोदी गई सड़कें ताहाल जू की तू दिखाई देती हैं, जबकि करीमाबाद से हुसैनाबाद जाने वाली शाहरा भी खोद दी गई। तरक्याती और मुरम्मती काम मुकम्मल ना होने से मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना है। सड़क खोदने के बायस मोटरसाइकिल सवारों की दुश्वारियां भी बढ़ गई। इस सड़क को जब खोदा गया तो इलाका मकीन सीवरेज का मसला हल होने के ख्वाब देखने लगे, मगर इस ख्वाब को ताबीर ना मिल सकी। सड़क खोदने के बाद इसे खुला छोड़ दिया गया, जिसमें गंदा बहता पानी जमा हो गया, जिसके बायस लोगों को घर से निकलना और दुकानदारों का कारोबार करना मुश्किल हो गया है। आधी सड़क पर चलने वाली गाड़ियां टूटी सड़क से बामुश्किल गुजर पाती हैं। शहरी कहते हैं मोटरसाइकिल सवार भी इसमें गिर चुका है। अपनी मदद आपके तहत लोगों के लिए रास्ता बनाया है। ये 3 हफ्ते पहले की कहानी है। ये वहाँ से इन लोगों ने स्टार्ट किया था, तकरीबन 5 दिन में यहाँ पे पहुँच गए थे ये लोग। वहाँ से खोदते हुए आए हैं, फिलिंग नहीं करी है इन्होंने कुछ भी, ना नालियाँ डली है। इस इलाके के रोड जो है ना एक अरसे से ऐसे ही है। इस इलाके के रोड काफी वक्त से नहीं बना, वो आधा सिर्फ डंपर डालता है, ऊपर से सीमेंट मार के रोड बन गया। कई हफ्ते नहीं कई महीने हो चुके हैं, काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये आखिरी बारिश जो हुई थी उसमें जो है ये रोड खराब हुआ था, उसके बाद यहाँ तोड़ फोड़ हुई थी, उसके बाद अभी तक जो है यहाँ साफ सफाई नहीं हुई है। एक खड्डा हमने किस तरह खुदा की कसम बंद किया वो हमारा दिल जानता है। और यहाँ पर बाइक गिरी है सामने खड्डे पे, बंदा भी अंदर गया है। करीमाबाद से हुसैनाबाद मोड़ तक सड़क को खोद कर छोड़ दिया गया है। ऐसे तरक्याती कामों का होने से बेहतर ना होना है, क्योंकि अब टूटी सड़क ही नहीं 5 फीट से ज्यादा गहरी खोदी लाइन शहरियों के लिए खतरे का बाइस बन सकती है। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ हफीज अंसारी, Metro 1 न्यूज, कराची। शहर कराची की मरकजी शाहराहों पर बेहंगम पार्किंग का निज़ाम है, जबकि दुकानों के आगे तजावुज़ात और फिर डबल गाड़ियों की पार्किंग। इंतजामिया और पुलिस की मुबैना सरपरस्ती में अहम मकामात पर रिक्शा स्टैंड्स का क़याम। अहम शाहराहों पर बेहंगम पार्किंग के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, जबकि शाहराहों पर तजावुज़ात और डबल पार्किंग के बायस पैदल चलने वाले शहरी भी अपने हक से महरूम हो गए।
इलाका करीमाबाद चिंची रिक्शों के सबब ट्रैफिक के मसाइल से भर गया। अगर आप कराची के शहरी हैं तो करीमाबाद पर ट्रैफिक जाम से बखूबी वाकिफ होंगे, जहां ट्रैफिक पुलिस एहलकारों और जिला इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से रिक्शा स्टैंड बन गया है। चिंची रिक्शों की कतारें आधी सड़क पर मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से शाहराह पर हर वक्त ट्रैफिक जाम रहता है। इस मौके पर आवाम का कहना था कि चिंची रिक्शों की वजह से यहाँ हादसात होते रहते हैं, जिसे जहाँ जगह मिलती है वो वहीं खड़ा हो जाता है। ये आप देखें कि कोई तरीका ही नहीं है खड़े होने का। जो मेन रोड चल रहा है उसके साथ रिक्शे खड़े हुए हैं, ट्रैफिक रुक रहा है, ठेले वाले खड़े हैं। ये चिलचिन सबसे ज्यादा हो गई है ना, सारा निजाम बिगड़ चुका है। ये बीच में आते हैं, कई बार तो मुझे टकरा दिया इन्होंने। मैं स्टॉप पे ऐसे खड़ा हूँ, वो गाड़ी ला के ऐसे खड़ा करता हूँ, मैं पीछे उतार आता हूँ और गाड़ियाँ आती रहती है, वो दीवार से लग जाता है बंदा यहाँ पर। इस रोड पे ट्रैफिक क्यों जाम होता है? यहाँ पर जो है ना असल में गाड़ियाँ हो गई हैं बहुत ज़्यादा, बड़े बड़े ट्रॉलर भी जाते हैं रात में, उससे भी डर लगता है कि बाइक वाले रिक्शे वाले बिल्कुल करीब जाते हैं। मैं कहती हूँ कि इन लोगों को चाहिए कि ट्रॉलर का जो है ना रूट्स अलग बनाएं ताकि खुदा न खास्ता कोई हादसा ना हो। और आवाम जब रोड क्रॉस करती है तो ये लोग रोकते भी नहीं है गाड़ियाँ, कि लेडीज जा रही है या कोई बच्चे जा रहे हैं या कोई कॉलेज की लड़के जा रही है। रिक्शाओं की वजह से जाम हो जाता है और ये गाड़ी वाले बेतरतीब गाड़ी निकालते हैं, इसकी वजह से जाम हो जाता है। और रिक्शा को जहाँ आते तो वो फौरन रुक जाता है, पीछे से मोटरसाइकिल वाला आ रहा हो वो टकरा जाता है। कोई लाकानूनियत है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, ना चलाने वालों को पता है और ना ही रोकने वाले को पता है। उसको सिर्फ 10-50 की ज़रूरत है, वो सही को रोक रहा है या गलत को रोक रहा है। बाकी डबल लाकानूनियत की सारी वजह यही है, कानून सख्त हो तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। शाहराह पर गैर कानूनी पार्किंग माफिया का भी राज है, जहां बड़ी तादाद में बाइक्स पार्क होती हैं, जबकि चिंची रिक्शे भी ट्रैफिक के मजीद मसाइल पैदा कर रहे हैं, जो इलाका मकीनों के लिए किसी अजियत से कम नहीं। कैमरामैन इमरान यामीन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।